Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the first chapter of class 7th and this is from civics. This chapter name is on equality यानी कि समानता पर। आपके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इनलाइटेंड सिटीजंस, सेंसिबल और वाइज लीडरशिप, साउंड पब्लिक ओपिनियन, accommodation of differences, disciplined citizens, disciplined political parties, social and economic equality. Next, now is time to turn up. The question is, to whom are voting right are granted in India? यानी कि इंडिया में किसको वोट करने का अधिकार है? The people who has 18+, मतलब ऐसे लोग जो 18 से पार हो चुके हैं। Let's start. We have seen in class 6 that democracy is considered the best form of government. In this chapter, we will discuss those features of democracy which make it superior to all other forms of government. What are the factors that make it superior to all other forms of government? Let us have a look at some of its special characteristics and try to ascertain the reasons. हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसको गवर्नमेंट का एक सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं और वो इसको अन्य प्रकार जो होते हैं गवर्नमेंट के उससे ज्यादा सुपीरियर श्रेष्ठ क्यों बनाती है। आइए देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं और कारण। जैसे एनलाइटेड सिटीजंस, we know that democracy stands for expression of the will of the people. It is very basis of democratic government. People are the supreme authority in the true democracy and all changes are brought about by their collective will and not by the use of force. हम सभी जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, लोगों की इच्छा पर आधारित होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बुनियादी रूप है। सबसे ज्यादा लोगों को इसमें विशेषता प्राप्त होती है, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो अपने नेता को चुन सके और जितने भी वो चेंज लाते हैं वो अपनी इच्छा से लाते हैं, ना कि किसी फोर्स द्वारा। Political awareness of the people is one of the most important aspect of the true democratic country. The citizens should have sufficient knowledge and they should have political awareness so that they can make the right choice by taking the right decisions at the appropriate time. It doesn't mean that they should be highly educated or have university degrees, but they should be conscientious enough to make judicial decisions. जो political awareness होती है वो क्या होती है? लोगों की जो political awareness है वो सबसे ज्यादा एक मुख्य पहलू है सच्ची लोकतांत्रिक देश का। जो वहां के लोग होते हैं उनको एक sufficient knowledge होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल अवेयरनेस में हिस्सा ले सके और अपने द्वारा जो उन्हें टाइम दिया जाता है एक समय के अनुसार सही डिसीजन प्राप्त करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो इसके लिए उन्हें किसी हाईली एजुकेशन की जरूरत हो या किसी डिग्री की जरूरत हो, लेकिन उनको क्या हो कि वो अपना एक सही निर्णय खुद ले सकें। इन्फोबिट्स है आपका। Only a politically enlightened citizens can judge the performance of the government and make the right choice of their representatives by weighing up their merits and demerits. Now is come to the next page. Next topic is sensible or wise leadership. In large countries, people cannot directly administer themselves. They elect political leaders to represent them in the legislative. Therefore, they elect their representatives to represent them in the legislature. For this purpose, elections are held after a certain period. कि जो बड़े बड़े देश होते हैं उसमें क्या होता है, लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो खुद से कोई काम कर सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर यानी कि एक नेता चुनते हैं जो कि उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में जब उसको वो रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं, तो वो उनको विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है और इस उद्देश्य के लिए जो इलेक्शन है वो एक निश्चित पीरियड के बाद दोबारा रखे जाते हैं। Elections are an important part of democracy. Different political parties take part in these elections by
fielding their candidates. The leader of various political parties hold several public meetings as a part of their election campaign. They discuss various issues and problems and try to apprise the voters of their plans and programs for tackling these issues and problems if voted to power. Such meetings help people to make up their mind and take a firm decision about whom to vote for. After the elections are over, the party having the largest number of elected representatives emerges victories and is invited to form the government. जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी का एक मुख्य पार्ट होता है, एक मुख्य हिस्सा होता है। जो अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट को फील्ड में उतारकर इस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। जो लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको क्या करते हैं, वो जो विधान जो चुनाव होता है उसका और जो पब्लिक मीटिंग्स होते हैं उसका हिस्सा होते हैं। वो क्या करते हैं, जो लोगों की समस्याएं होती हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं, उनकी योजना, उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार की जो मीटिंग होती है वो क्या करती है, लोगों को निर्णय लेने में, उनके सोच को बदलने में डिसीजन, अलग अलग फार्म डिसीजन करती हैं। और इलेक्शन के बाद में जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं वो पार्टी गवर्नमेंट के रूप में सत्ता में आती है। नेक्स्ट, इन केस नन ऑफ द पार्टीज गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कलेक्शन, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। कि अगर ऐसा होता है कि दो पार्टी को समान वोट मिल रही हैं तो उसको क्या होती है, उनकी सरकार गठबंधन के रूप में आ जाती है। Thus we see that if the voters are politically aware and conscious of their duties and responsibilities, they elect only those leaders as their representatives who are efficient, devoted and committed. The real progress of the country depends in the safe hands of such leaders. कि अगर वोटर्स पॉलिटिकल अवेयर्स होते हैं और कॉन्शियस होते हैं अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐसे लीडर को चुनते हैं जो कि एफिशिएंट होता है, डेवोटेड होता है, कमिटेड होता है। अगर जो हमारे देश की सत्ता है वो सही हाथों में जाएगी, उसको चलाने वाला लीडर सही होगा, तो हमारा देश क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट है साउंड पब्लिक ओपिनियन। Public opinion as a decision-making mechanism plays a major role in a democracy. As such, public opinion as a decision-making mechanism plays a vital role in a democracy. In a true democratic government, people have the right to choose their representatives according to their conscience. They are entitled to express their opinion by casting votes during an election. No democratic government can ignore public opinion. If ever they ignore it or try to suppress public opinion, people can oust them in very next election. Public opinion, जो पब्लिक की राय होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, वो चुने जाते हैं और वो डेमोक्रेसी में एक अच्छा रोल निभाते हैं। इसी प्रकार पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, जो मैकेनिज्म डिसीजन मेकिंग होता है, वो क्या करता है, डेमोक्रेसी में एक विटल, बहुत ही ज्यादा विकराल रूप होता है। और जो सच्चा ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई इंटाइटल्ड कास्ट है, वो वोट के दौरान अपना खुद का ओपिनियन भी दे सकती है। कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पब्लिक के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो इसको इग्नोर करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, उन्हें अगले इलेक्शन में आगे नहीं आने देती। बट व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, लेकिन पब्लिक ओपिनियन से मतलब क्या है? वी कैन डिस्क्राइब एज इट एज द विशेज ऑफ द पीपल एंड एनी इशू और प्रॉब्लम। Enlightened citizens always have their own views and opinions on various public issues and problems. जो इसको हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोगों की किसी भी मुद्दे या समस्या पर उनकी इच्छा, वो होता है पब्लिक ओपिनियन। जो इनलाइटेंड सिटीजन होते हैं, यानी कि जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जितने भी विभिन्न प्रकार के पब्लिक इशू हो या प्रॉब्लम्स हो, उन पर खुद के विचार होते हैं। थ्रो देयर ओपिनियंस में डिफर बट द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी आर टेकन एज अ पब्लिक ओपिनियन। कि जो ओपिनियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो जिसका विचार सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में आता है उसको पब्लिक ओपिनियन के रूप में लिया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी एवन अ माइनॉरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन व्हिच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। कभी कभी जो छोटे समुदाय होते हैं वो भी एक ऐसा ओपिनियन पेश कर देते हैं जिसको पूरी कम्युनिटी द्वारा इंटरेस्ट में लाया जाता है। 10 विशेस ऑफ द पीपल और पब्लिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड
पब्लिक ओपिनियंस, कि जो लोगों की इच्छाएं होती हैं सामाजिक मुद्दों पर या सामाजिक समस्याओं पर, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक ओपिनियन. If the citizens are enlightened and conscious, they, under the able guidance of their leaders, can form a sound public opinion. Various agencies like the political parties and mass media help greatly in forming public opinion. If they work selflessly, they can create a strong public opinion, which is very essential for the smooth functioning and of a democratic government. कि अगर जो लोग हैं, जो enlightened होते हैं, conscious होते हैं, वो क्या करेंगे? एक लीडर की गाइडेंस के अंदर काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं? साउंड पब्लिक ओपिनियन का एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं. जो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज होती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, मास मीडिया हो गई, वो किस में मदद करती हैं? पब्लिक ओपिनियन को इन्फॉर्म करने में. अगर वो सेल्फलेसली होकर काम करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर पाएंगे, जो कि इसेंशियल और स्मूथ होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए. नेक्स्ट, रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंसेस. A democratic government is run by the party or a coalition of parties that gets the mandate of the people in terms of the majority of seats or votes. Then what happened to the minority? Are they neglected or denied of their rights to express their views and opinions? No, it's not the case. In a true democratic country, every group, however small it may be, has the right to voice their opinion. कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको चलाने के लिए किसी पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज की जरूरत होती है, जो कि लोगों द्वारा सीट्स और वोट्स की मेजॉरिटी में बनाए जाते हैं. तो क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होती है उससे क्या होता है? क्या उन लोगों को अपने ओपिनियन, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. जो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें हर ग्रुप, चाहे वो छोटा हो, हर किसी को अपने राय, अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का अधिकार है. Disciplined citizen. The citizens of a country are its real assets. They are the backbone of the country. Political awareness and discipline are two essential qualities that create political awareness amongst the citizens. They are essential for the formulation of a sound public opinion. जो सिटीजन्स होते हैं किसी देश के, वो उसके रियल एसेट्स होते हैं, वो उस कंट्री की बैकबोन होते हैं. पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, डिसिप्लिन हो, ये किसी भी पॉलिटिकल अवेयरनेस, सिटीजन की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है उनकी दो अनिवार्य विशेषताएं होती है, यानी एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ साउंड पब्लिक ओपिनियन. जो कि साउंड पब्लिक ओपिनियन का जो फॉर्मुलेशन होता है उसके लिए एसेंशियल यानी कि बहुत जरूरी होती हैं. फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर किसी लोकतंत्र को अच्छी तरह से सफल रूप से चलाना है, द सिटीजन शुड बी अवेयर फॉर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. जो उस देश के सिटीजन हैं, वहां के नागरिक हैं, उन सभी को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य पता होने चाहिए. दे शुड बी रेडी टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड एट द सेम टाइम शुड बी इक्वली ऑनेस्ट इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री. जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार रहें उसी समय, और अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा करें. वायलेंस और यूज ऑफ फोर्स हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. किसी प्रकार की हिंसा या किसी जोर जबरदस्ती का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है. पीपल शुडंट रिस्टोर वायलेंस फॉर गेटिंग देयर डिमांड्स फुलफिल्ड. जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वायलेंस का उपयोग नहीं कर सकते. रादर दे शुड बी टॉलरेंट एंड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स इन एन एमिकेबल मैनर. जबकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को एक सही मैनर में पूरा करना होगा. इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल आर डिसिप्लिन्ड. और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वहां के लोग बिल्कुल सभ्य होंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टीज. Generally, representatives of the people are elected with the help of political parties. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो लोग चुनते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से चुनते हैं. These parties help in creating public opinion and persuading people to vote for them. जो वो पार्टीज होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करती हैं और लोगों को वोट देने के लिए उत्साहित करती हैं. These parties help in formulating public opinion and persuade people to vote in their favor. जो लोग होते हैं वो उनको पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करने में मदद करते हैं, और वो कहते हैं कि ताकि उनके फेवर में, उनकी तरफ ही वोट दें. दे सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स एंड वर्क फॉर देयर विक्ट्री.
वो क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और अपनी विजय के लिए काम करते हैं। They chalk out their plans and programs and try to implement them once voted to power. वो एक ऐसे प्लान और प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि जो लोग हैं उन्हें वोट दें और वो उनकी पावर में आए। द पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव अ ब्रॉडर आउटलुक। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका एक ब्रॉडर आउटलुक होना चाहिए। दे शुड प्लेस द नेशनल इंटरेस्ट अबव एनीथिंग एल्स। उनका कोई नेशनल किसी चीज में कोई नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। दे शुडंट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रीजन। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी पर्टिकुलर धर्म और किसी भी जाति को नहीं देखना चाहिए। पार्टीज विद सच नैरो कंसिडरेशन मे कॉज अनरेस्ट among the people and even lead to diversion of the nation. Social and economic equality. Democracy is based on the principles of equality and human dignity. जो डेमोक्रेसी है वो किस पर आधारित है, इक्वालिटी के सिद्धांत पर और ह्यूमन डायनेस्टी के सिद्धांत पर। Therefore, a true democratic society should be free from all kinds of biases and prejudice. जो सोसाइटी होती है एक ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वो हर तरफ से फ्री होती है। There shouldn't be any discrepancy on the basis of caste, religion, faith, gender and language. वहां की जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, फेथ, जेंडर, लैंग्वेज पर आधारित नहीं होती। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड इक्वली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सोसाइटी के जितने भी सेक्शन होते हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए मिलकर काम करते हैं। द रूल ऑफ लॉ इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जो रूल होता है, रूल ऑफ लॉ, वो डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल एलिमेंट है। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर नागरिक कानून की नजर में एक समान है। A true democracy should also have a free and fearless judiciary which anyone can approach if she feels that justice has been denied to him her. कि अगर किसी को लगता है कि अगर किसी को फील होता है कि उसके साथ जस्टिस, उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, तो वो अपना ट्रू डेमोक्रेसी के आधार पर फ्री है और फियरलेसली उस पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। A society can truly be called democratic only if all its members get due respect and dignity as human beings. एक जो सोसाइटी होती है वो उसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है अगर उसके सारे मेंबर क्या करते हैं, रेस्पेक्ट पाते हैं और डिग्निटी पाते हैं। इकोनॉमी की डिस्पैरिटी is a major hindrance on the way to democracy. A true democracy should always try to reduce the wide gap between the rich and poor. जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है वो हमेशा क्या ट्राई करती है, वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो रिच यानी अमीर और गरीब के बीच का एक जो गैप है वो खत्म हो जाए। इट शुड आल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट नन शुड हैव स्ट्रव एंड एवरीबॉडी शुड हैव देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल्ड। उनको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी वंचित ना रहे, हर किसी के पास उनके अनिवार्य सामान मौजूद हो। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस इफ देयर इज अबंडेंस ऑन वन हैंड एंड पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिएशन ऑन द अदर। कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर वहां के लोग पॉवर्टी और ह्यूमिलेशन में रहेंगे। द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आर एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का एसेंशियल कंडीशन होती है। नेक्स्ट थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर करना है। व्हाट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। Democracy. Next is important terms. First is enlightened citizens. That mean of people having a good knowledge and understanding of their situations. Next is political awareness. The meaning of this word, true knowledge and judgment about the problems and issues related to the country. Next is formulate. Form or create something carefully and preciously. Next, tolerance, patience to hear, think over and understand something. Rule of law, the concept that every citizen is equal before the law. Human dignity, regard, honor and respect for every individual. Next is quick brush up. First point is, in a true democracy, people are the supreme authority. All changes are brought about by their collective will and not by the use of force. Next point is, in a true democracy, the citizen should have sufficient knowledge and political awareness to make the right choice by taking the right decision at the appropriate time. Next, elections are an important part of democracy. Your next point is, a democratic government is based on liberty and equality, tolerance and inclusiveness are two of its essential features.
The citizens of a country are its real assets. They should be aware of their rights and duties. Any differences of opinion should be sorted out amicably. Let's practice A. Take the correct option. First is democracy is the expression of the will of the people. The opposition shouldn't create undue hindrance in smooth running of the government by holding all of these. The democratic government is based on tolerance, liberty, equality, all of these. The political party shouldn't represent any particular religion, caste, resign, all of these. Tolerance can be defined as the equality of patience, hearing, understanding. The again, all of these. Next is filling the blanks. First, sensible leaders enlighten the voters at the at time of elections. Inequality is a major hindrance on the way to democracy. The rule of law is an essential element of democracy. No democratic government can ignore public opinion. Since ancient times, India has been known for its prosperity. Next is right, true or false. A true democracy stands for the expression of the will of the people. The answer of this is true. The political party should work for individual interest. False. Only highly educated people can be called enlightened citizens. This is also false. Elections are an important part of democracy. This is true. A democratic government can ignore public opinion as and when it's like to do so. This is false. Next is match the following. Elections, important part of democracy. Next is public opinion. Wishes of the people on public issues. Tolerance and inclusiveness, essential features of democracy. Political parties, soul of the democracy. Rule of law, essential element of democracy. Next, very short answer type question. How is political awareness an important condition for democracy? Let's see the answer of this question. Political awareness of the people is one of the most important aspects of the true democratic country. The citizens should realize knowledge and they should make political awareness so that they can make the right choice by taking the right decision at the appropriate time. Let's see the next. What is rule of law? Let's see the answer. The rule of law is an essential element of democracy. Every citizen is equal before the law. Next is who holds the real power in a true democracy? The answer of this question, people. Which form of government is considered to be the best? Democratic. Why is public opinion essential for a democracy to work? Let's see the answer.
If the citizens are enlightened and conscientious, they, under the ever guidance of their leaders, can form a sound public opinion. Various agencies like the political parties and mass media help greatly in forming public opinion. If they work selflessly, they can create a smooth public opinion, which is very essential for the smooth functioning of a democratic government. नेक्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिस्कस हाउ इंटॉलरेंस कैन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from elections are an important part to form of the government. आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे इसके आंसर में. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by its sound of public opinion, who helps in formulating the same? Let's see the answer. If the citizens से लेकर आपको लिखना है ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक. नेक्स्ट देखते हैं. Define and explain human dignity. A society can, यहां से आप लिखेंगे फुलफिल तक. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल डिसिप्लिन ऑफ सिटीजंस. पब्लिक ओपिनियन से आप लिखेंगे इन द वेरी नेक्स्ट इलेक्शन. Write a short note on sensible leadership. In large countries, to after a certain period और 10 वीक सी से लेकर such leaders. Next, why are social and economic equality necessary for the successful functioning of a democracy? आप लिखेंगे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द से लेकर डाइग्निटी एज ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें कि आपका फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है. फाइंड आउट व्हाई आंग सान सू की रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस. कि जो आंग सान सू थे उन्होंने नोबेल प्राइज शांति के लिए क्यों रिसीव किया. नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट. Prepare a chart showing the rights and responsibilities of a true citizen and display it in the class. यानी कि जो एक अच्छे नागरिक के अधिकार और उनके उत्तरदायित्व होने चाहिए, उनके आपको एक चार्ट बनाना है और उसको क्लास में शो करना है. प्रोजेक्ट में आपको होल्ड अ डिबेट, अपनी क्लास में एक डिबेट होल्ड करनी है जो कि किस पर हो, इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ पर हो, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जैसे कि इंडिया हो गई उसके लिए कैसे अचीव किए जा सकते हैं. क्रॉस कनेक्ट में मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एनलाइजेंट सिटीजंस. आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.